Very good. Today we all have gathered here to commemorate the 84th birth anniversary of revered Dr. APJ Abdul Kalam, who has been rightly termed as Missile Man of India. He was born on 15th of October 1931 in Rameshwaram. Dr. Kalam has worked in different scientific, technologically advanced educational fields. He has been universally acclaimed as Dr. APJ Abdul Kalam and his pursuits in science and human development. Today's event is organized by Young Indians with the help of CII. Dr. Kalam wanted every student to excel in science and to do the best for one's country as well as to the world. We solicit Dr. Ajay Gerola, who has spared his valuable time to tell us more about the great scientist and human being Dr. APJ Abdul Kalam. He has done various work in different fields, but his areas of interest are fluid mechanics, hydraulics, wind engineering, environment and disaster management. Coming to his educational qualifications, he has done PhD from University of Roorkee in civil engineering. About his professional experience and career achievements, I have lot more to say, but here I would like to mention few from 1995 till today. He has been faculty advisor for various sports and as warden for various hostels at Roorkee University. As Deputy Director AICTE New Delhi, Chief Advisor Sports IIT Roorkee, Member Secretary Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board, and from January 2012 till date, he is HOD Center of Excellence in Disaster Mitigation and Management. He has organized various national and international conferences, seminars and courses. He referred various journal papers. He has been honored as recipient of national and international fellowships. He has served in various capacities with the government at central, at state and national levels. Good afternoon, children. I am delighted to be here, and I particularly thank the principal and the staff of the school who have found me so suitable that I can come and try to be a torchbearer to Professor Kalam. Particularly the I am supposed to be talking to you regarding Abdul Kalam, not as a person. I don't think at this stage you would enjoy what degrees he did, what he did not do. But I would like to understand something from you before I speak to you on that. Let me first hear how many students they understand English very well. Anyone who has a difficulty in understanding English language, I can do it in Hindi also. कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं? हाथ उठाएं। हिंदी समझते हैं कितने बच्चे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो हाथ नीचे करें? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश समझते हैं? कोई बात नहीं, हम हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। अब आप मुझे बताइए कितने बच्चे जानते हैं अब्दुल कलाम है कौन? Who knows? कितने बच्चे जानते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताइए। प्रेसिडेंट। और कौन बच्चा उनके बारे में क्या जानता है, क्या जानती है आप? बताइए। गलत बताने से नंबर कटेंगे नहीं यहाँ पे। मुझको ये समझ में आ जाएगा मुझे आपको और क्या बताना चाहिए। क्या साइंस था? बहुत अच्छी बात। हाँ बताइए लास्ट में। ये तो बता दिए छोटे बच्चे ने आपसे। वो भी इसमें बता दिया। नई चीज बताओ, बड़ा बच्चे हो यार तुम। बर्थ कब थी? गुड। और कोई किसी और को भी चांस दो।
अच्छा, गुड। अब आपको पता है जब उन्होंने पहली बार मिसाइल छोड़ी थी कितनी बड़ी असफलता का सामना किया था? कितने बच्चे जानते हैं? इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब आप किसी आदमी को अपना आदर्श मानते हैं तो उसकी सफलताओं पे मानते हैं, लेकिन जो आपकी स्थिति है वो असफलता वाली है। आप जब तक एक सफल व्यक्ति या इंसान बनोगे बहुत सारी असफलताओं से गुजरोगे। सबसे जो आपको इस स्टेज पे जरूरी है असफलता पे विजय पाना। कोई बच्चा ऐसा क्लास में फेल हुआ हो कभी भी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। मुझको ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे अंदर गुण है एक बड़ा आदमी बनने के। कौन बच्चा फेल हुआ है किसको कहते हैं? अंग्रेजी में कहावत है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे कुछ आपको सेटबैक नहीं लगता है, कहीं पे ऐसा फेलियर नहीं आता है, आपको ऊपर उठने में उतनी आसानी नहीं होती। पहला चीज बच्चों को अगर अब्दुल कलाम जी को याद रखना है और कोई उनसे गुण लेना है तो यही है कि असफलता ही हमारी सफलता की कुंजी है। आप अगर फेल भी होते हैं या कहीं कोई ऐसा क्रेडिट आता है जिसमें आपको कम मार्क्स मिलते हैं, पहला चीज घबराने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे जानते हैं हवाई जहाज कैसे उड़ता है? अब्दुल कलाम जी ये करते थे। कितने बच्चे ऐसे जानते हैं कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है? अभी मैडम ने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं। कितने बच्चे जानते हो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? कोई क्लास 10, 11 का साइंस का बच्चा है? एनी स्टूडेंट हु कैन गेट अ गुड 10th 11 साइंस का कोई बच्चा है? आपको मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ढूंढ रहा हूँ बच्चे को। तुम्हारी भाषा से तुमको समझाऊं कि हवाई जहाज कैसे ऊपर उड़ता है। जो चीज हवाई जहाज को ऊपर उठाए उसको लिफ्ट फोर्स कहते हैं, तभी तो उठेगी ऊपर। पतंग उड़ाते हो? पतंग सबसे ज्यादा वही सिद्धांत हवाई जहाज उड़ने का है। यही अब्दुल कलाम जी की खासियत थी कि पतंग उड़ाने से लेके हवाई जहाज उड़ाने तक वो उसी विज्ञान को लगा सके। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। उसमें एक फोर्स होता है जैसे लिफ्ट फोर्स करते हैं। पतंग को आप कैसे रखते हो? रस्सी से खींचते हो? कितने उड़ाते हो पतंग? जब पतंग उड़ रही होती है तुम्हारे हाथ में जोर आता होगा, लगता है जोर, हवा चलती है ना, वही लिफ्ट फोर्स है जिससे हवा। लेकिन जितना ऊपर पतंग को उड़ना है उतना गतिरोध होना जरूरी है। तो आप अपने साइज के हिसाब से पतंग बनाते हैं और जितनी बड़ी पतंग होगी उतना ही अच्छा उड़ेगी, छोटी पतंग कभी नहीं। यही सिद्धांत है। अब्दुल कलाम जी ने वहीं से अपना करियर शुरू किया, अखबार बेचते थे और पतंग उड़ाते थे, जिससे उनको ये अंदाज आया कि अगर मैं कोई एक ऐसी शेप की बॉडी बनाऊं जिसके अंदर आदमी बैठ सकता है और यही सिद्धांत उसमें लगा दूं तो हवाई जहाज उड़ जाए। कितने बच्चे इंटरनेट देखते हो? लेकिन लिफ्ट फोर्स किसी को नहीं पता। कितने जवाब आए थे? आपने किसी ने गूगल सर्च अब्दुल कलाम के बारे में देखा? आप उसमें देखना अब्दुल कलाम ने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने प्रयोग किए, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में किए। जब उनकी पतंग 10 बार कटी तब उनको समझ में आया कि हवाई जहाज कैसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसके सिद्धांत से उन्होंने हवाई जहाज के लिए एफर्ट किया, जिसमें उन्होंने पहला यान आपने बताया था उड़ाया, लेकिन ऊंचे गिर गया था, ऊपर नहीं गया था। मेरा कहने का मतलब ये कि उनके कैरेक्टर से आप उन चीजों को पकड़ो जो आपको ऊपर ले जाए। जैसे निराशा, असफलता, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको पीछे ले जाए।
ये वो चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। यही अब्दुल कलाम जी कहा करते थे। इसलिए भी सकते हैं, उनको पढ़ा भी सकते हैं। तो आप ये मत मानिए कि वो पहले से ही ऐसे ही हुए थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, इस तरह से ऊपर गए। आज वो आपको पढ़ाने की क्षमता है। तो पहला चीज़, जब भी आप किसी आदमी की जीवनी पढ़ें, आप ये ना पढ़ें वो मिसाइल मैन था, आप ये पढ़ें वो था क्या, कहाँ से कैसे गया। वो आपके जीवन की एक शिक्षा होगी, जिससे आप ये समझ सको कि हमें, और हर आदमी के लिए वो शिक्षा अलग है। विज्ञान के छात्र के लिए अलग है, कॉमर्स के छात्र के लिए अलग है, हिंदी इंग्लिश के छात्र के लिए अलग है, लेकिन शिक्षा वही है। विज्ञान में क्या करना चाहते हो? अब बुढ़ा आदमी सुनता नहीं जल्दी। फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करना चाहते हो? और कोई बच्चा? पहली विशेषता आपके अंदर ये होनी चाहिए कि इतना करेज हो कि आप क्लैरिटी के साथ खड़े होकर बोल सके मैं ये करना चाहता हूँ। उससे आपका जीवन का ध्येय पता लगता है। अब्दुल कलाम के अंदर यही खासियत थी। तो किसी मीटिंग में भी जाते थे, यहाँ भी प्रपोजल ले जाते थे किसी भी विज्ञान का, किसी भी ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार का, वो 100% बोलते थे। वो 100% बोलते थे। हर बच्चे को आज के दिन ये शपथ लेनी चाहिए कि मेरे दिमाग में जो भी विचार है मैं वो जरूर बोलूँगा, क्योंकि अवश्य है कि जब आप बोलोगे तो बड़े गलत तरीके से बोलोगे, आपका टीचर आपको इम्प्रूव करेगा कि बेटा इसको ऐसे नहीं बोलो, इसको ऐसे बोलोगे, ज़्यादातर लोगों के समझ में आएगा। अब्दुल कलाम जैसे बहुत वैज्ञानिक हुए हैं। अब्दुल कलाम ही अकेले ऐसे वैज्ञानिक नहीं, लेकिन लोग उनको ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उनके अंदर अपने विचारों को किसी भी फोरम में रखने का एक बड़ा भारी कार्य होता है। जब तक आप ये नहीं सीखोगे, किसी भी क्लास में आप हो, ये क्लास 1 से, छोटी क्लास से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बनने के बाद ही बोलने की हिम्मत आई होगी। जब आप पूरी स्टेजेस में अपने विचारों को रखते हैं, आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को ये समझ में आता है बच्चे का क्या ध्यान है, बच्चा क्या कर सकता है, बच्चे को कहाँ भेजना चाहिए। नहीं तो होता कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं IIT में पढ़ने के लिए, आप जैसे एजुकेशन पाने के लिए, हर बच्चा ये कहता है कि साहब मैं गलत ब्रांच में आती हूँ, मेरा गलत सब्जेक्ट है। क्योंकि ना तो उसके पेरेंट्स को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे का क्या टैलेंट है, कौन बच्चा वैज्ञानिक बनना चाहता है, कौन बच्चा कवि बनना चाहता है। पेरेंट्स अपनी इच्छा से भेज देते हैं, आपको फिर वो नकारना नहीं चाहिए। या तो आप अपने दिमाग में बनाएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना वो आप सीखोगे, लेकिन पहले क्या करना और सही जगह पे जाना है करने के लिए। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हो? जोर से बोल यार। डॉक्टर, किस चीज का डॉक्टर? अच्छा, क्या विषय पढ़ने होते हैं डॉक्टरी में? कौन सी क्लास में? जोर से बोलो, क्लास में हल्ला मचाते, बहुत कंप्लेंट आती है तुम की। जब क्लास छूटती है तो बच्चे बहुत हल्ला मचाते हैं, लेकिन जब से पढ़ाई की बात करते हैं क्या हुआ इसमें? क्या क्या विषय पढ़ने होते हैं? कुछ नहीं बता दी तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो कभी कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो? क्या पढ़ा कि मतलब डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो साइंटिस्ट बन गए। आपने पढ़ी जिंदगी की छुट्टी, तो 2 बार फेल भी हुए। देहरादून भी आए इम्तहान देने, DRDO में भी गए इम्तहान देने, दोनों बार फेल हो गए। अंततः वो उनके कमांडर बने, उन्होंने वही एयरफोर्स का काम किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, ये ऐसा नहीं जो आप देख रहे हैं वही हैं। ये जीवन में शुरू से कुछ ना कुछ ऐसी विचारधारा के होते हैं जिनसे इनको कुछ संदेश मिलता है।
अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि मैं इस लाइट से ब्लड टेस्ट कर सकता हूँ, ब्लड की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो निकाल सकता हूँ, तो आप मानोगे डॉक्टर साहब? ये बिजली है, इससे मैं आपका खून निकाल के उसमें टेस्ट करूँ, आप कर सकते हो? ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग इंटरनेट पे देखिएगा। मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे को भी, मैंने भी इंटरनेट में कभी पढ़ा हुआ किसी बच्चे को बताने के लिए। ग्रह पे गया है, कितनों को पता है? अब मंगल ग्रह में पानी है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है, वो इसी प्रयोग का वो है। यहाँ से बैठ के उस लाइट को जो फैक्ट्री जो वहाँ जाती है यान, उसमें इस लाइट का प्रोविजन होता है, उसको फिल्टर के थ्रू उसके पास करते हैं। ये भी एक इसमें अचीवमेंट है जो अब्दुल कलाम साहब ने किया। हर बच्चा नेट पे जाए, लाइट का बियर इफेक्ट देखे और फिर देखे कैसे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ने फिजिक्स का यूज किया। ही वाज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर। आप कोई भी चीज देखते हैं, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? अब कितने मुझे आप कौन से पेस बॉलर कितने हैं, स्पिन बॉलर कितने हैं? पढ़ाई बहुत महंगी चीज नहीं है, आप खेल खेल में सीख सकते हो। आप क्या करते हो? बॉलिंग करते हो, स्पिन करते हो? बॉलर बताओ पहले, बैटिंग का बाद में आऊंगा। बॉलर कौन है? कौन बच्चा पेस बॉलिंग करता है? यार जोर से बोलो। अब ये रिवर्स स्विंग करनी हो तो क्या करूंगा? यही प्रिंसिपल हवाई जहाज के डिजाइन में लगता है। If you have to design an helicopter or some kind of a aircraft, the same principle, if you are correct on that, you can design an aircraft. आप लोग अपने यहाँ मॉडल स्टडी करते हो, कोई बनाते हो वैसे? I will advise all of you to have a small hobbies club, जो तुम खेल के आते हो, जो एक्सपेरिमेंट तुम बॉल की स्विंग या रिवर्स स्विंग में करते हो, आप एयरक्राफ्ट के डिजाइन में करो। ये तो अब्दुल कलाम जी की तारीफ थी। वो हर छोटी चीज को, इस जो मैंने आपको कहा कि अपने क्वेश्चन को अगर आप पुटअप करना चाहें, आप ये सीखें अपने कैरेक्टर में। आप टीचर से छुट्टी भी मांगने जाते हैं ना, कुछ बच्चों को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती है। ये इसलिए है कि आपको आता है मुझे अपनी बात कैसे रखनी है। आपको अब्दुल कलाम के लिए ये सीखना पड़ेगा कि अपने किसी भी बात को अपने किसी सीनियर के सामने या सुपीरियर के सामने या घर में या टीचर के सामने आप ऐसे पेश करें। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। पहला चीज जैसे यही है कि आपके अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक ऑब्जर्वेशनल पावर, जिसे कहते हैं ना, कोई भी चीज आपको दिखती है वो देखने की बड़ी क्षमता होनी चाहिए। उससे आपको कुछ विचार निकालना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है? कितने बच्चे पर्यावरण के बारे में जानते हैं? बॉटनी के कोई बच्चे हैं यहाँ पे? Any student who have studied botany? यहाँ है 10th के बच्चे? 10th के बच्चे हाथ उठाए यार। यार अब तक क्यों नहीं उठा रहे थे? अब मुझे बता दो कि जो प्लांट्स हैं उनसे आपको क्या फायदा है? बताया जी, बात सुन। हैं? तो मिलती है एयर में, कुछ लेता नहीं है प्लांट। आप प्लांट को कुछ देते भी हो। तो ये सब चीजें ऐसी जो आपको समझ में आनी चाहिए। वो ऑक्सीजन देता है और आपसे कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो इसलिए प्लांट लगाना जरूरी है। प्लस जो बच्चे बॉटनी के हैं वो इसको अध्ययन करें, इंटरनेट पे जाएं कि आपके एरिया में किस तरह के पॉल्यूटेड हवा में है या पानी में है,
उसी तरह के प्लांट, खाली प्लांट नहीं लगा देना है। जो बॉटनी के बच्चे हैं वो इस चीज को पढ़ें कि मैं किस तरह का प्लांट लगाऊं जिससे मेरे घर के आसपास जो भी पोल्यूटेड है, चाहे वो ग्राउंड वाटर में जा रहा हो गंदा पानी, या हवा में उसके मॉइस्चर में कुछ हो, उसको एब्जॉर्ब करेगा। दे एक्ट एज ए प्यूरिफायर, दे आर नॉट सिंपली ए प्लांट। ठीक है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है जो मैंने बोला? मुझे पूरे हॉल में से आवाज आनी चाहिए, तभी फायदा नहीं मिलता। और ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसका मैं जवाब ना दे पाऊं। कितने बच्चे अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं? How many children want to become like Abdul Kalam? He was also very, एक ही बच्चा है यहाँ पे अब्दुल कलाम बनने वाला। और बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है अब्दुल कलाम बनने से रोक रहा है? क्या होता है? साइंटिस्ट बनने के लिए कोर्स की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो वहीं से साइंटिस्ट बन सकते हो। चारों पंखे पास में लगा दें, ज्यादा हवा आएगी। अगर मान लीजिए मैं लगा दूं पंखे निकाल के आसपास, तो आपको क्या लगता है, हवा ज्यादा आएगी कम आएगी? क्यों आएगी? नहीं, पंखे दूर दूर हो गया, पंखे टकराएंगे थोड़ी, इतने पास पास थोड़ी लगाओ, टकराएंगे उड़ जाएगी। कम आई है तो ठीक है। जब ये पंखे चलते हैं तो ये जितनी इसकी डायमीटर है ना, इससे थोड़ा ज्यादा जगह में हवा लेता है, और दोनों पंखे उसके अंदर अगर आए तो इंटरफेरेंस करते हैं, वो एक दूसरे से गतिरोध पैदा करेंगे, इसलिए कम है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिससे आप इन चीजों को इम्प्रूव करने की क्षमता रखते हो। जरूरी नहीं आप पंखा डिजाइन करो, पंखे को कैसे लगाया जाए, कैसे इसका उपयोग किया जाए, वो भी वैज्ञानिक होने की निशानी है। ठीक है, कीजिए कोशिश, ऑल द बेस्ट। और कोई बच्चा जो अब्दुल कलाम ना बने? बीयर्स लॉ, BEER, ठीक है, स्पेलिंग सेम है। जब लाइट को किसी फिल्टर के थ्रू निकालते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है। इधर लाइट है, इधर फिल्टर है, इधर आपका ब्लड का टेस्ट ट्यूब है। जब इसके थ्रू निकलता है और उस पर टकराता है, उसके डिफरेंट कलर्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड। फ्रॉम देयर यू इन्फर कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यही एक्सपेरिमेंट जब लार्जर स्केल पे किया जाता है, जैसे आपका वेरी शॉर्ट फ्यूचर, आप मोबाइल फोन से, उसमें आपको बुक एक्सेस हो जाएगी, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, उसमें आपको लाइब्रेरी एक्सेस होगी, अगेन यू कैन हैव द कंसल्टेशन विद द टीचर। आप इसको पढ़िए। हाउ दिस IT enabled, एक कोर्स आता है, आई डोंट नो वेदर सम टीचर्स हैव डन हियर और नॉट, IT enabled एजुकेशन। ठीक है, आप इस चीज़ों को पढ़िए, इससे आपका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। एनीबडी? हाँ बताओ। मंगलयान में ऐसा क्या है? अच्छा, आपने पृथ्वी के बारे में पढ़ा कभी? पृथ्वी के बारे में पढ़ा जिसमें रहते हो? पृथ्वी के बारे में पढ़ा? क्या पढ़ा है कि पृथ्वी में क्या है? धरती में आपकी ये है, ग्राउंड है, मिट्टी है, नीचे रॉक्स हैं, वायुमंडल है जिसमें पानी है, जिसमें हवा है, यही तो है। जब किसी इंसान को कहीं रहना होगा तो आपको ये देखना है वहाँ पे चीजें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मार्स में वो यही ढूंढने की कोशिश करते हैं कितना पानी है, कितना नहीं है, प्रयोग करने योग्य पानी है कि नहीं है, सफिशिएंट हवा है कि नहीं है, जिससे आप चिंता कैसे रहोगे। अब आप मुझे बताइए, धरती पे गुरुत्वाकर्षण क्यों है? धरती में जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, ये क्यों होता है और क्यों कम हो रहा है? पढ़ा है इसको, गुरुत्वाकर्षण।
कुछ गुरुत्वाकर्षण था, गुरुत्वाकर्षण भी चाहिए, आपको हवा पानी भी चाहिए जिससे आप जिंदा रह सकें। वही चीज़ वह खोज करते हैं। तो जो मैंने बीएस लॉ पढ़ाया है, आपको बताया है, उसमें यही करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के पानी कैसा है। जैसे आप ब्लड का निकालते हैं ना, ब्लड की क्या क्वालिटी है, पैथोलॉजी लैब में निकालते हैं, वैसे ही पानी का निकालते हैं, वैसे ही हवा का निकालते हैं। जीने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सारे एलिमेंट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ऑक्सीजन कम हो, तो आप नहीं जी सकते। उसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, ये सारे उपयोग वहाँ किए जाते हैं। किसमें? जो आपका एयरक्राफ्ट है ना, इसमें इन्होंने सेंसर, अगर मिरर होगा तो लाइट वापस आ जाएगी, ग्लास होगा तो आगे चली जाएगी। अब ये ग्लास की जो प्रॉपर्टीज होगी वो डिजाइन करते हैं इस तरह से कि इट वर्क्स एज ए फिल्टर, जैसे पानी का फिल्टर होता है, एज ए लाइट का फिल्टर होता है, वो लगा के भेजा हुआ है। तो वो जब लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू फिल्टर एटमॉस्फेयर में, तो वो जो सिग्नल देता है उसकी एनालिसिस होती है यहाँ पे आके, इसमें क्या वाटर क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी होने की संभावना है, एयर की क्या क्वालिटी है, उसमें लाइफ रह सकती है कि नहीं रह सकती है। ये है लाइट लगी हुई। कैसे लगती है? आपने मैग्नेट देखा है? मैग्नेट देखा है, उसमें जो मैग्नेटिक लाइंस आती हैं वो उसको पुल करती हैं। ऐसे से ग्रेविटी फोर्स में भी इसी तरह की वेव्स आती हैं। जैसे अर्थक्वेक में आप सीस्मिक वेव बोलते हो ना, अर्थक्वेक आता है, सीस्मिक वेव्स आती हैं, इसमें भी ग्रेविटी में भी उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड से वेव्स आती हैं। दो द वेव्स विल पुल यू अप। जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना डिस्टेंस से उतना ज्यादा मटेरियल को सक कर लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स गॉड गिफ्ट है, इट इज सफिशिएंट फॉर द लाइफ टू सर्वाइव। अगर ज्यादा होती तो भी दिक्कत होती, कम होती तो भी दिक्कत होती। तो साइंटिस्ट की वही है कि जो आग का गोला धरती के नीचे है वो बहुत स्लो रेट में ठंडा हो रहा है। उस ठंडे होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रोबेबिलिटी काफी है कि वो कम होती चली जाएगी। अगर वो जीरो हो जाएगी तो इट विल बिकम नॉन लिवेबल। लेकिन इसमें इतना टाइम है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें इतना टाइम है कि वैज्ञानिक लोग जो ये सब कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग अपने मार्स में जा रहे हैं, मून में जा रहे हैं, इसीलिए कि क्या हम वहाँ ऐसी कंडीसिव कंडीशन ला सकते हैं या हम ऐसी डिवाइसेस कर सकते हैं जिससे हमको वहाँ रहने में आसानी हो। अब जैसे आप देखिए मून में अभी तक पहले तो इट्स रेयर इवेंट होता था, कोई एयरक्राफ्ट जाता था। नाउ दे आर मेकिंग फॉर टूरिस्ट। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आप बताइए कैसे करोगे? मुझसे पूछ लो। जब मैंने कहा तुम आइडिया दे रहे हो बनाने का, आपको पता है पानी से बिजली कैसे बनती है? या फिर आ गया तो नहीं कर सकते मोशन से। तो आप हाइड्रो में क्या करते हो? बिजली जब पंचक्की या बिजली बनाते हो, ये सब क्या है? मोशन से तो है, कन्वर्ट है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। यू कैन डेफिनेटली डू, यू हैव टू वर्क आउट द फिजिबिलिटी। कैसे होगी? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताओ? बिजली कैसे बनती है? मुझे हवा से बता दीजिए। आपने पंचक्की के बारे में पढ़ा है, विंड मिल्स लगी है बहुत बड़ी बड़ी जिससे पानी भी निकालते हैं। क्या बताओ? सर उससे सर हवा से जो मोशन होता है उसमें, उससे सर वो अंडरग्राउंड है, उससे फिर एनर्जी को वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज बिल्कुल ठीक है। उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उससे हाइड्रो एनर्जी। देखो विंड को आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दो तरह की एनर्जी में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बहुत एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन करो ना, नेट में पढ़ो, छोटे छोटे इतने एक्सपेरिमेंट बनते हैं कि कैसे उसे हैंडपंप से आप चला सकते हो मैकेनिकली। बिजली में आपको एक इंटरफेस लगाना पड़ता है। ये भी मैकेनिकल एनर्जी बनती है, हम या तो उस पर हैंडपंप कनेक्ट कर दें
या उसमें कोई टरबाइन कनेक्ट कर दें। टरबाइन जो है आपको बिजली देती है। टरबाइन का आपको पता है कैसे देती है? आप उसमें कॉइल लगाते हैं किसी सिस्टम में, कॉइल लगाने के बाद यू मेक अ मोटर टू मूव। जब ये मोटर मूव करती है तो ये इससे कॉइल से जो करंट्स आती हैं जब वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं उससे बिजली बनती है। आपको खाली ये सिस्टम बनाना होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कैसी वाइंडिंग होती है, कैसे वो मैकेनिकल एनर्जी आप ऑलरेडी बना ही रहे हो, कितनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, वो आपको विंड स्पीड कितना टाइम एक मौसम में आपको उतनी विंड स्पीड मिल जाएगी, उस विंड स्पीड से कैलकुलेट करते हो कितनी पावर है। अभी आपको इक्वेशन हाफ रो वी स्क्वायर करके निकालते हैं। v इज द वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम जो हवा है, उससे हम निकालते हैं इतनी पावर हो सकती है। उस पावर को आपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर में कन्वर्ट करना है तो आराम से बना सकते हैं। बहुत अच्छे से बन रही है बहुत जगह, गुजरात में आप देखोगे बहुत सारी बन रही है। और बताइए, लेकिन ये आइडिया दिया ना, आप बिल्कुल इस पर काम करना है। उस पर कोई बहुत पैसे नहीं लगते हैं। स्कूल ना दे, चंदा इकट्ठा करके बना लेना एंड देन गिव ए गिफ्ट टू द स्कूल। ठीक है ना? कभी कभी इन चीज़ों के लिए अपने को रोकना मत। पैसा स्कूल पेरेंट्स ही दें ऐसा नहीं है। आपको ये भी टैलेंट आना चाहिए कि अब मुझे कोई काम करना, पैसे कहाँ से आएंगे? चोरी से नहीं, आप चंदा मांग लीजिए। बच्चों को एनकरेज करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं, वो भी जाके चंदा मांग के लाते हैं, कलेक्ट करते हैं, लाके टीचर को देते हैं। बच्चे वो हिसाब रखता है, क्योंकि आपको हिसाब रखना नहीं आता भी, आप कहीं गलत खर्च करोगे, फंस जाओगे। बट डू मेक इट, देन गिव ए गिफ्ट टू द स्कूल। अगली बार स्कूल ऑटोमेटिकली 4 बच्चों को पैसे देगा। सर वो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं कि प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं? बेटा इसके वोल्ट मीटर्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सर बड़ा एरोप्लेन मतलब कोई बड़ा नहीं बनाओगे डायरेक्ट, बनाओगे छोटा ही पहले। आप उस अगर आपको कभी देखना हो ना, आप मुड़ किया, हमको पता है लेकिन क्यूरोसिटी खत्म हो गई, तो हम उसमें इतना दिमाग नहीं लगाते। लेकिन एक आइडिया हमारे अंदर वो टैलेंट है, इसने कुछ बोला हमें समझ में आ गया, हम इसको कर लेंगे। बट आई वॉन्ट यू टू डू इट। कभी तेरे को चिंता होती है कंप्यूटर की, बहुत दूर नहीं है, बस में बैठ। ये अगर एरोप्लेन चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, अगर हो रही है तो कैसे चेक करें? उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, मुझे कह रहा हूँ उसमें इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। देयर आर इंस्ट्रूमेंट फिटेड इवन विद इन। अभी जनरेट करते नहीं है इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये उससे चलता है, पेट्रोल से जो भी उसका ऑयल है उससे चलता है, बिजली से नहीं चलता। लेकिन उस ऑयल से वो हवाई जहाज के लिए बिजली पैदा करते हैं। वी कैन डू रिवर्स, हम बिजली पैदा करके उसकी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर सकते हैं। उसके लिए इंजन के डिजाइन चेंज हो जाते हैं। अगर आप जैसे बैटरी ऑपरेटेड आपके स्कूटर्स आते हैं, ऑटो आते हैं, मोपेड आती है, उसके इंजन के डिजाइन डिफरेंट है। जो पेट्रोल से डीजल से चलते हैं, डीजल पेट्रोल के भी डिफरेंट है, तो वो डिजाइन चेंज हो जाते हैं। यू कैन, आपको एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल, आप बिजली से लाओ, पानी से लाओ, तेल से लाओ, धक्का दे के लाओ, किसी तरह से लाओ, उसके अकॉर्डिंग इंजन चेंज हो जाता है। न्यूट्रॉन्स क्या है? मेरे को समझ में नहीं आया क्या वर्ड है ये। या मैं अभी इसके लिए इस साल का नोबेल 2 साइंटिस्ट को दिया गया फिजिक्स में, तो क्या होता है नोबेल प्राइज तो देखिए, लेकिन वर्ड मुझे समझ में आ रहा। ठीक है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, कोई पार्टिकल होगा ये। यार तुमने पढ़ा नहीं? न्यूट्रॉन तो बहुत पुराने हो गए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा करना, कुछ नहीं, किसी से नहीं पूछना। आपको अगर स्पेलिंग याद हुआ गूगल सर्च में जाकर डाल देना। नहीं गूगल में डालना तो सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है ना? गूगल में, क्योंकि वर्ड आप ठीक नहीं बोल रहे, मुझे लग रहा है, मैंने तो सुना नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन तुम बनाना जरूर इसको। समझ में नहीं आया, आप उनकी आ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। बीआर लॉ वाला बंदा है, उसको जॉली ग्रांट में मिस्टर त्रिलोक रजौरा है, बगल में ही है आपके, वहाँ जाइए, उससे पूरा डिटेल ले लीजिए, वो आपको सारी चीज़ समझा देंगे। आप एक्सपेरिमेंट सेटअप कीजिए, वहाँ पे हमने एक एंटरप्रेन्योर सेल खोला हुआ है। जॉली ग्रांट में इंजीनियरिंग कॉलेज है,
आप कहाँ रहते हो? हरदा में रहते हो? ऑसिलेशन आप वहाँ जाना, वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर सेल है, वहाँ पे मिस्टर त्रिलोक राजा IIT के पुराने ग्रेजुएट हैं दिल्ली के, वो वहाँ के बच्चों को यही चीज़ें सिखाते हैं. ही इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर दिस पर्पज एंड आई वुड लव एनी वन ऑफ यू एनी टाइम यू कैन गो एंड सी. बहुत सारे हम मेडिकल के डिवाइसेस, यदि करंट इस एंड से जा रही है, सपोज करो 3 एम्पीयर 2 एम्पीयर, अगर रेजिस्टेंस है तो खराब आएगी, कम आएगी. रेजिस्टेंस है पर इस एंड पे उतनी ही करंट जा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, आपका वोल्ट मीटर खराब हो सकता है, कैलिब्रेशन खराब हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे करंट ले जा रहा हूँ और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है. वायर है, सिंपल वायर है, रेजिस्टेंस वायर वायर में अगर रेजिस्टेंस है तो वायर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है. अगर रेजिस्टेंस होगा तो 100% करंट ड्रॉप होगी, उसमें हीट प्रोड्यूस होने के बाद करंट कम होगी, करंट कम होगी. तो फिर करंट उतनी ही तो जा रही है. कैसे आपने मेजर करते हो? आपका वोल्ट मीटर ठीक से कैलिब्रेट नहीं हो तो वोल्ट मीटर भी कैलिब्रेट किए जाते हैं इससे पहले कि आप उसको करंट मेजर करो, अदरवाइज संभव नहीं है. करंट बिल्कुल ड्रॉप होगी. लेकिन देखा गया गलत है, गलत है. आप एक टीवी लगाते हो, घरों में जो लाइट जाती है, आप देखो मीटर से लेके बल्ब तक में करंट में आपको रेट आया था. अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस पर कह रहा अगर वायर में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो करंट कम होनी तो चाहिए. हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब आपको कब होगी बता भाई. हीट कब पैदा होगी? जब मेरे भाई जब उसमें रेजिस्टेंस होगी. अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी ना, तेरे को गुस्सा कब आएगा? तो यहाँ से वहां तक भागेगा जब मैं तेरे को रास्ते में रोकूंगा, तेरे को गुस्सा आएगा. दैट इज रेजिस्टेंस. वायर में भी यही होता है. अगर उसमें रेजिस्टेंस है, वायर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस उसके मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हो रहा है, करंट फ्लो में, वो बिल्कुल रेजिस्टेंस होगा. अगर हीट हो रहा है तो 100% उसमें रेजिस्टेंस है, विच इज सब्सटेंशियल. का आदमी बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं. डायमंड बनने के लिए एक बड़ी उसमें हीटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है और बहुत हाई टेम्परेचर हीटिंग है. ये तुम्हारा मतलब जो है नहीं बनेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं बनेगा. आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट बट इट्स नॉट. इसमें आप कुछ एडिटिव डालने पड़ सकते हैं या कुछ एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा, तब बोथ ऑफ देम हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक. एंड डायमंड जब भी बनेगा जब बहुत हाई टेम्परेचर उसकी प्रोसेसिंग. टेम्परेचर दे रहा था, हाई टेम्परेचर जिसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं ना, वो नेट में देखा था. तो मतलब उसमें कुछ आपको एडिटिव डालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा. क्योंकि हर मेटल्स आप दो बता रहे हो, डायमंड और मेटल, दोनों की टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट है. In order that this comes to this temperature carrying capacity, आपको एडिटिव डालना पड़ेगा, अदरवाइज हरा तो बना देगा. There must be some element which has to be added. ये आपको मटीरियल साइंस या मेटलर्जी के लोग जो होते हैं, they can tell you better. नहीं बने, ऐसा नहीं बनेगा. ऐसे सर अगर मतलब इसको अगर जरूरी बनाना हो तो ये मतलब बना सकता है कि देखो, nothing is impossible. Everything is possible. Only thing is impossible को पॉसिबल करने के लिए हमारे कितने एफर्ट लगने चाहिए, कितना मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होगा. That will make you capable to break it. Everything is possible. मून में जा सकते हैं, मार्स में जा सकते हैं, मून में आप एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं. आज से 15 साल 20 साल पहले कौन सोचता था? बिल्कुल पॉसिबल तो है, कोई दिक्कत नहीं. Khan has his hurt in his right side, not in left side. Sir, there is a movie Luck in which it is showed that the Imran Khan actor has his hurt in his right side. So it is possible or not? This is an exceptional case. There is a possibility. See, you require a heart in the body. Okay? There is always a possibility. There is always a possibility. But normally, you can have only one eye. It is a God gift. There is a possibility. You can have a third eye as well. There is a possibility, but there becomes some limitation then. But I think the heart being a right and left should not be as much a problem. It is only the internal system of the body, how it has been placed. That's it. जैसा आपको एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स में लेना चाहते थे, तो
बिकॉज उन्होंने कभी काम करना छोड़ा नहीं, पहली चीज। एयर फोर्स में जो उनको करना था वो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, क्या उनका एडमिशन है। इट कैन बी ए कोइंसिडेंस, इट कैन बी डिजाइन। समटाइम्स यू आर fated to do something. Everybody cannot become Abdul Kalam, even though there are people who are much brighter than Abdul Kalam. This is only the attitude and consistency. He became an aeronautical engineer. From there he became into a space program. From there he became a president, and then he became a coordinator of the Air Force. The president is the ultimate authority of the defense. This is all a chance. As I said, he wanted to become a doctor. But tomorrow he might get selected into an IIT or in any institution where he does a biotechnology. Still he can achieve. Even if he goes into computer science, he can still do a lot of things which are related to biomedical. The boy I am talking about is an electrical engineer who is in Jolly Grant. And throughout of life, he did work on biomedical. Like dialysis, जब manually करते थे, he is the one who first time designed that system. Now dialysis is so simple, you can put it inside the body. You can do it. He is only designing that system. I said that you trigger a button and the message goes everywhere. You are picked up by the ambulance, you are taken into the right kind of a doctor. On the way you get a right kind of a first aid. Everything is designed into that. So this is all your objective has to be clear. It doesn't matter that you have become a computer scientist and you can't become a medical doctor. Or you have become a medical doctor, you cannot need a computer science or biology. और सिस्टम से ही आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। Anybody else? सर रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में क्या क्या प्रॉपर्टी इंक्लूड होती है जब अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में मतलब इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो मतलब ये I will not be able to give you offhand because my branch is not electrical engineering. I work on civil engineering and cyclone. That is why I said you come to and see how we are developing a lab. Okay? These are the properties. Inductance is a metal. This is electrical property of movement of the particle, that how easily the current can flow. That will depend, like you have a permeability. Similar to that, you have permeability in the soil. Being a civil engineer, I work on foundation engineering, so I have permeability. With what ease the water can flow through that system, that becomes the permeability. Similar to that, what ease the current can flow through the induction or conduction. See, आपने देखा होगा convection and conduction पढ़ते हैं. These are the mechanical properties. Like if there is a metal, if I heat on this particular end, how this heat travels from this to this end? This is called conduction. If there is a fluid, if I heat on the bottom of any tub, heat moves from bottom to top. How it moves through the water? The movement of water, the velocity becomes important. Similar to that, the induction and conduction. So the property of the wire allows an easiness and difficulty movement of the current from one point to another point. Exactly how you write in numerical terms, you have to look into the text and find out. Anybody else? आपने 3 stages पढ़ी ना, solid state, liquid state and gaseous state. These elements are the gaseous state. इनको मीडियम एयर चाहिए होता है, सॉलिड भी चाहिए, दोनों में आग लग सकती है, पानी में भी लग सकती है, पानी मीन्स सम लिक्विड विच इज इन्फ्लेमेबल, उसमें भी आग लग सकती है और लकड़ी में भी लग सकती है, सीधा सॉलिड, इट इज अ गैसेस स्टेट। हाँ बताओ, ये जो एयरक्राफ्ट का वो था, आप देखो इतनी बड़ी साइज की बॉडी में वेलोसिटी से ऊपर जाते तो थोड़ा प्रेशर होता है, मैंने इसको बताया सेंसर, उसको उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगाए हुए थे। वन ऑफ द सेंसर स्टॉप वर्किंग, व्हेन इट स्टॉप वर्किंग उसने उसके टेम्परेचर कंट्रोल को करना बंद कर दिया, इतना गर्म हो गया that it got burned. That was the reason
गट पड़ा। उसमें प्रॉब्लम जाते समय ही आ गई थी, तो ऐसे सब केयरलेसनेस होता, उसको रिपेयर भी किया गया था, चला तो गया आते समय। Anybody else? Aeroplane used to इलेक्ट्रिसिटी से चल सकता है, लेकिन उतना वजन शायद ना ले जा सके। मैंने आपको बताया ना, हर तरह की पावर की उनकी कैपेसिटी होती है। छोटा बनाएंगे चल जाएगा, जो आप इसमें यूज करते हैं अपने खिलौना में, जिसमें आप बैटरी लगा देते हैं, इट विल वर्क। हेवी उसमें उसके इंजन में बहुत चेंजेस करने पे। दीज आर द एरिया ऑफ रिसर्च, आप लोगों को सोचना चाहिए। यही तो इसी डिस्कशन में तो आए हैं। आप लोग सोचो क्या क्या हो सकता है। एज ऑन टुडे उसका जो वेट होता है, उसके लिए जो इंजन चाहिए उस स्पीड पे चलने के लिए, वो इट्स नॉट इवन पेट्रोल, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल जिसको चलता है, इतना वेट उठा नहीं पाएगा। ठीक है? So when you please concentrate on the points which I have said. Number one, that you should have your thoughts very clear. You should be confident to speak before your teacher or the parents. Either the teacher or parent has to know what is going on in your mind. If you want it to be converted into a reality, that you can achieve some target, some goal, so that you can go as high as Abdul Kalam. Third, your attitude towards the failures should be very positive. Until unless you have suffered certain damage in a life, आप साइकिल चलाना सीखते हो, 10 बार गिरते हो तब चलाते हो, छोड़ ही देते हो। That is an attitude. कि मुझे चलानी है साइकिल तो चलानी है। Same thing should happen when you are doing work in a classroom. You may not be able to understand something in the first stand. आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। आप उसको अब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक you don't achieve the satisfaction of doing it. That is what is the key to reach the heights that the gentleman was able to reach. Okay, so it was nice talking to all of you. I enjoyed. I was so impressed that I am leaving my email. You can freely send me an email what you want to do. If I find that a lot of students who are interested in one of the particular things, we will invite you to IIT Roorkee and then you can have it. Okay? Thank you very much. Thank you so much, sir, for your wonderful words and knowledge. Now, I would like to invite our principal, Mrs. Veena Sani, to pay a vote of thanks to Mr. Giran. Good afternoon, children. And a very special good afternoon to you, sir. So we are thrilled and honored to have you here. And side by side, I would like to thank Young Indians to have given us this opportunity to have you here. Children, I would like to share with all these talks and all, I would like to share just one thing with you. When I was a child, I think probably, I can't remember exactly, maybe in class 3 or class 4. So some person, I don't even remember the name, had come to our school to give us such kind of a talk, and he said that we should concentrate more on inventions and inventing new things and doing more experiments. And you know, when I came back home, I was just thinking that I'm so comfortable in what all inventions the scientists, the earlier scientists have done for us. We have food to eat, we had television to watch, I had radio also to listen to. I had that small dialing telephone at home. I really thought that that scientist who had come for a talk probably was wrong in telling me that we need some more inventions. I really thought that at that age that there is no thing which is left to be invented. हमारे साइंटिस्ट बनने से पहले मुझे लगा सब कुछ इन्वेंट हो गया है. You know, this was the thought I had when I was in class 2, 3 or 4, I don't exactly remember. But if I look from that time, when I was in class 4, 5, to this time when I have, become your principal at this age, I have, I don't know, uncountable number of things which got invented in these years. Have you understood? That means there is lots and lots and lots of more things to be done in terms of science. Wherever I go in your classes, whenever I find chance to interact with you, I always give you one word: science is progressive.
Yes, no. Do you know what is progressive? What we are studying right now in these days in your curriculum, probably tomorrow it might have something new coming up. That is what is, I think, the most interesting part of this subject, science. Because there are changes, it's not monotonous, it's not the same always. Right? So make a big question mark in your mind, in your brains. Have a big question mark, ask questions, ask reasons, go look into the books, go to Google, find answers, struggle, whatever you want to do. But don't let this question mark fade in your brains. I once again thank you, sir, for being here, for sharing such wonderful thoughts and interacting with our children. I hope children are also going to get benefited with it. Thank you so much. Good afternoon, everyone.